On the stage, the chief guest of the occasion, Shri Krishan Ji, Senior Lecturer Assistant in the Department of Chemistry. His wife, Madam Thapa, Professor Joshi Ji, among the audience, his daughter, Mrs. Nidhi Ji, his all near and dears, distinguished guests, the members, my worthy colleague, the members of the teaching and non-teaching staff. Good morning to each one of you. Today I am distinctly privileged and feel honored to welcome each one of you over here in this venue and gracing the occasion. As for the services of Shri Krishan Chand is concerned, he has rendered his services in the Department of Higher Education for about 37.5 years. He had joined in this college on 2nd of June 1987, and thereafter he was transferred to the Government College Chamba, where he served nearly for about 20 months, and then he came back to the same college where he is working till date. Krishan Ji is very humble, affectionate, and down-to-earth character in my perception. He deserves all kudos as a human being. He will be remembered by the college for a very long for his devotion, commitment, morals, ethics, for his punctuality, for his responsibility in the department, for which definitely he deserves kudos. As far as retirement is concerned, anyone who joins in the government service, of course, one day he retires. So, a person who is retiring, if he has a clean character throughout his life, throughout his services in the government sector, is really a matter of a huge appreciation. Please give him a huge round of applause. एक साफ सुथरी छवि के साथ रिटायर होना अपने आप में ही एक गर्व की बात है, जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। मुझे ये पूरी आशा है कि जब कभी इस कॉलेज को इनकी सर्विसेज की जरूरत होगी, इनके एक्सपीरियंसेस की जरूरत होगी, ये अपने आप को यहाँ हमारे बीच अवेलेबल करवाएंगे और कॉलेज को ये आगे बढ़ाने में और मदद करेंगे। इन्होंने ना केवल अपनी सर्विसेज JLA has been working with a great efficiency in conducting the exams, in fees counter, and even he conveyed me that he has worked as a hostel superintendent over there in GC College, Chamba. Having said that, he started his services in the college itself through Subordinate Service Commission. He came through Public Service Commission and joined as a Junior Lecturer Assistant directly, which is again a matter of a proud for such a huge stature. So, I won't be speaking too much. I would request any one of you who want to speak, I would request Professor Divan to please come over here on the dais and speak a few words. And SLA
who is there in the same department as well. So he has a very long association and he could narrate a little bit more about him. Please, sir. Chief guest of today, श्री कृष्ण जी, उनके परिवार के सदस्य, वाइस प्रिंसिपल संजय पठानिया जी, my fellow colleagues, members of non-teaching staff, मैं सभी का इस धर्मशाला के सभागार में स्वागत करता हूँ। किशन जी के बारे में जो भी बोला जाए बहुत कम है। मैंने 97 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में होते थे और ये उस टाइम पे हाउस एग्जामिनेशन भी देखते थे, जो कि एक्स्ट्रा काम है कॉलेज के लिए। और कुदरती मेरे को भी मौका मिला उस टाइम पे भी काम करने का हाउस एग्जामिनेशन में, तो इतना एफिशिएंटली काम करते थे कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती थी इनके काम में। उसके बाद ये फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आए, तो तब तो हमारे साथ ही थे ये, और कभी भी इन्होंने ऐसा मौका नहीं दिया कि हमें इनको दोबारा से बोलना पड़े किसी भी काम के लिए। जो भी काम बोला इनको, मतलब जल्दी करने वाला होगा तो वो उसी टाइम पे कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे वो काम तैयार होता था। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमने बोला हो और ये काम ना किया हो, और काम इतना साफ सुथरा होता था कि मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कोई भी काम करने वाला। और बड़े अच्छे यहाँ आज के चीफ गेस्ट कृष्ण चंद जी और उनकी फैमिली मेंबर्स लाई हैं इनकी प्रेजेंस में, इनके बोलने से, और अपने शब्दावली को रेक्टिफाई भी करता हूँ, साथ में क्षमा प्रार्थी भी हूँ। वो वाकई आज जो है कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। अच्छा, हमारे में से कोई टीचिंग डिपार्टमेंट से किसी ने अगर कृष्ण जी के बारे में कुछ बात करनी है या अपने व्यूज़ रखने हैं तो कृपा करके आगे आएँ और इज वेलकम टू स्पीक ओवर। टीचिंग डिपार्टमेंट से एनीवन फ्रॉम नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई इनके जो नियर एंड डियर्स आए हैं, उनमें से इनके जो गेस्ट आए हैं, उनके रिलेटिव्स आए हैं, कोई बोलना चाहे तो कृपा करके खुशी से आगे आएं और अपने शब्द रख सकते हैं। आइए, प्लीज कम। Good afternoon, all of you. Namaste. So actually I'm quite very emotional right now. So शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा. तो Anyway, thank you very much. Of course, it's a very emotional moment, but it's a happy moment when somebody retires with, you see, having a smile in the face with a clean character, एक साफ सुथरी छवि के साथ कोई इंसान रिटायर होता है, इससे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। Anyway, it's a little difficult to speak over here, I can understand. Anyway, अगर और किसी ने कुछ बात करनी है तो बड़ी खुशी से बात कर सकता है। मैं आज के चीफ गेस्ट श्री कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और दो शब्द कहें। डॉक्टर संजय पठानिया जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश जोशी जी, हेड हमारे हेड है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, प्रोफेसर रंजीत दीवान जी केमिस्ट्री के ही हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी साथ साथ इसमें हमारी डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के मैडम हितू, मैडम पूनम, डॉक्टर रंजीत ठाकुर, अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड चौधरी डॉक्टर
वर्ष जी, अपने बलराज सर, रंधावा सर, डॉक्टर अजय सर और उपस्थित सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी सदस्य एवं मेरे साथ आए हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा परिचय दे दूँ। इसमें मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री अमरचंद जी, और मेरे से एक बड़े भाई और है आत्माराम जी। मेरे साथ एक और मेरे छोटे भाई आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस में, और उनकी मिसेज श्रीमती सुरेखा देवी जी। मेरे इन लॉज की तरफ से मेरे सारा साथ रिटायर्ड कैप्टन BS थापा जी, और अपने रिटायर्ड कैप्टन AS गुरुंग जी, रिटायर्ड कैप्टन SR थापा जी, उनके दोनों आए हैं साथ में, और मेरे परिवार के भतीजे 11 सारे। तो आज इस मौके में मैं बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं आपके बीच इतने बड़े परिवार से आज रिटायर हो रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जैसा कि हमने बोला है कि सेवाएं की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं हमेशा साथ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं घर में नज़दीक है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो जब भी सेवाएं की जरूरत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। और मैं बहुत ही स्टाफ में सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ पधार कर मेरा मान सम्मान बढ़ाए। कोई क्षमा हुई होगी, कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना है। तो धन्यवाद। अब मैं नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कटोच जी को और बाकी इनके एसोसिएट, इन्होंने एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन एक गिफ्ट रखा है चीफ गेस्ट महोदय के लिए। तो प्लीज़ आप सब आगे आएँ और अपना जो एक स्मृति चिन्ह इनकी रिटायरमेंट पे देना चाहते हैं आप उनको। जस्ट बेक से केक लेकर आते हैं। कहाँ पे आगे मयूर? योल में अच्छा, जस्ट बेक से ना ओके लेकर आने हैं। ओके ओके। शाम के लिए अभी दिन अभी के? अभी 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 ठीक है बस यहाँ से सीधे में ही निकल जाना नहीं तो। ठीक और पेमेंट उसको गूगल पे का नंबर दे वो कर लेना। ठीक। इनका स्वागत करें। सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर जोशी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इनको शॉप पहनाकर इनका अभिनंदन करें। I would request Madam Anjali also to please इनको मैडम पापा को शॉप पहनाकर इनका भी स्वागत करें। नॉन टीचिंग स्टाफ से मैं कॉलेज सुपरिटेंडेंट श्री कटोच जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं, और साथ में प्रोमिला मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी मंच पर आएं और मेंटो प्रदान करें एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज। मैडम प्रोमिला प्लीज कम ओवर।
in anyone's life. उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मैडम भारती थापा जी, परिवार के सदस्य, इनकी बेटी निधि जो महाविद्यालय के भूगोल विभाग में ही पढ़ी है, और बेटा निखिल वो भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ही पढ़ा है। साथ में परिवार के सदस्य जो इनके भाई साहब यहाँ आए हैं, इनके इन लॉज की तरफ से ब्रदर इन लॉ और इनके साधु साहब भी यहाँ आए हैं, ये मुझे बताया गया। अन्य गणमान्य जो परिवार के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, महाविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स, सर्वप्रथम मैं किशन जी का इस सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है उसमें स्वागत, अभिनंदन, और बड़े ही हर्ष की बात है कि 37.5 साल इस महाविद्यालय में, साथ ही कुछ समय अवधि के लिए मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि 2 साल के करीब इन्होंने महाविद्यालय चंबा में भी अपना कार्य जो है वो किया है। ये एक ऐसे समय रहता है मनुष्य की, जो हम अपने देखें तो हम अपना पूरा जीवन जो है किसी भी ऑफिस में या महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं। कमीशन के थ्रू आने के बावजूद भी, कमीशन में ये JLA के रूप में महाविद्यालय धर्मशाला में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। मैं अभी भी मुझे याद है कि मैं उस समय 2nd ईयर का विद्यार्थी था इसी महाविद्यालय में जब इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग की है, और ऐसा नहीं, और काफ़ी लंबे समय तक मैं जब एज ए टीचर भी इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो उस समय भी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में ही ये अपना सेवाएं दे रहे थे। 37.5 वर्ष जो हैं इतने कम नहीं होते किसी भी क्षेत्र में या किसी ऑफिस में अपनी सेवाएं देना। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हमारे कॉलेजेस में प्रमोशंस जो है केवल 2 ही होती हैं, यहाँ एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल। मैं वही देख रहा था कि किशन जी ने भी इतना 37.5 साल में केवल JLA से SLA तक पहुंचे। किसी और ऑफिस में होते तो शायद सुपरडेंट या SO या उससे भी आगे निकल जाते। तो मैं आज इनको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने इतना लंबा समय इस महाविद्यालय को दिया है। ना जाने कितने बच्चे जो है इनके द्वारा इस महाविद्यालय में भूगोल विभाग में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़कर इनके आगे निकले होंगे। अपने कार्य के प्रति बड़े ही तत्पर रहे हैं, समय पे सुबह आना, और जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी उसी वक्त, मुझे तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का ज़्यादा याद है क्योंकि वहाँ खासकर कभी क्लास हो तो किसी मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने फटाफट लैब से निकाल के उसको पहुंचाना, या बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको हमें बताना कि इस प्रकार से, तो सारे के सारे प्रॉपरली टीचर के साथ असिस्ट करते थे। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारा जीवन काल बिल्कुल छोटा सा है, हम उतने समय अवधि को यदि आनते, तो मैं यही सोच रहा था कि बैठे बैठे कि मैं जब इस महाविद्यालय में पढ़ता था, आज ऐसी स्थिति आ गई है, आने वाले समय में मैं भी थोड़े समय में सेवानिवृत्त होऊंगा, तो मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि इतना समय, लंबा काल जो है कुछ ही पलों में बीत जाता है जिसको हम कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि एक अवसर या सुअवसर के रूप में हम इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो मैं आए हुए जितने भी इनके रिश्तेदार हैं उनका महाविद्यालय में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो जीवन है वो भी सुखद रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, यही है जीवन का मुख्य जो
जिसको सार हम कहते हैं। और यदि इसमें हल्का सा भी आप देखिए, यदि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप पे चेहरे पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी कह रहे हैं कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि मैं क्या करूँ, तो हाँ मैं लेके आता हूँ उनसे ये समझ लीजिए कि हमें एक और नई जो असाइनमेंट है, एक और नई जॉब मिलने जा रही है। पहले तो केवल हम ज्यादा समय इस महाविद्यालय को ही देते रहे हैं, अब जो है हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपने परिवार को दे पाएंगे और समाज को दे पाएंगे, क्योंकि केवल परिवार ही नहीं, समाज भी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। केवल अपने रिश्तेदार और जो हमारा जो सामाजिक दायरा है, जिसको हम समय समय पर इस सरकारी जो जॉब है, नौकरी है, उसके कारण नहीं दे पाएंगे, तो हम ज्यादा समय उनको दे पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः किशन जी को, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भारती थापा जी को पुनः महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये किशन जी का पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।